Okay, so this is my SQL. First, it is asking for the password, so I am providing the password. Then I want to show the list of databases, so show databases. Now this is the list of database. Suppose I want to use the database school, then use school. So I'm inside the database school. Now I want to show the different tables stored in this database. Suppose attendance EMP, then EMP1. Now the next thing that I want to do, I want to create a table inside this database. Now how I can create the tables? Now to create a table I need this create table command. Suppose I'm talking about this create table command, so this create table command is a DDL command. Okay, DDL means data definition language command. Now this is a simple command by which we can create a new table in the database. The syntax is very simple: create table and then the name of the table that we want to create. And suppose we want to create a new table, then we should know about the name of the columns and then the associate data type for that column. So create table, then this is the table name. Then we have to mention the name of the column and the corresponding data type that we want to store in that column. Then we can also specify the particular constraint that we want to apply. What is constraint? So constraint simply means the constraint. Constraint simply means the condition or check. Constraint means the condition or check. तो सपोज हम कोई टेबल बना रहे हैं स्टूडेंट, उसमें अगर मैं रोल नंबर कॉलम को प्राइमरी की बना देता हूं, तो इसका मतलब क्या होगा कि अब उस कॉलम में वो पर्टिकुलर कॉलम जिसको प्राइमरी की बनाया है वो क्या रहेगा, मेरा यूनिक रहेगा, मतलब उसकी वैल्यू अब रिपीट नहीं होगी और उसकी वैल्यू नल भी नहीं होगी, तो वो नॉट नल भी साथ में हो जाता है। तो अगर आप प्राइमरी की कंस्ट्रेंट देते हैं देन इट इज ऑटोमेटिकली बिकम नॉट नल एज वेल एज द यूनिक। तो सिमिलरली देर आर अदर वेरियस कंस्ट्रेंट लाइक हाउ मेनी कंस्ट्रेंट आर ऑफ टू टाइप, ये भी मैंने बताया था, दो टाइप के कंस्ट्रेंट हमारे पास है। वन इज कॉल्ड कॉलम कंस्ट्रेंट, वन इज कॉल्ड टेबल कंस्ट्रेंट। सो कॉलम कंस्ट्रेंट विच अप्लाई टू अ सिंगल कॉलम, ठीक है, अप्लाई टू द सिंगल कॉलम। While suppose I am talking about table constraint, then the table constraint which apply to the group of columns applies to group of columns. Now what is the meaning of this? Suppose I want, what is primary key? It is a collection of one or more attribute that can uniquely identify tuples within the relation. So this is a bookish definition of primary key. So primary key can, in one table there is only a one primary key. In one table there is only one primary key. But that one primary key may or may not be for means one primary key can be made from a single column and it may be a combination of multiple columns. एक कॉलम को लेके भी प्राइमरी की बनाई जा सकती है या दो तीन कॉलम को भी प्राइमरी की बनाई जा सकती है। तो अगर एक कॉलम को लेके प्राइमरी की बनाएंगे तो वो एज अ कॉलम कंस्ट्रेंट जो सिंटेक्स होगा प्राइमरी की का उसको फॉलो करेंगे। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि जो प्राइमरी की है वो दो कॉलम को लेके बनाई जाए, देन वी हैव टू यूज दिस टेबल कंस्ट्रेंट, ठीक है। सो ये दो टाइप के कंस्ट्रेंट है। तो अगर कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाना ज़्यादा तो सिंपल सिंटेक्स यही है, क्रिएट टेबल दिस देन कॉलम देन डेटा टाइप, फिर कोमा कोमा करके सारे कॉलम आप दे दीजिए, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, सेमीकोलन लगा दीजिए, तो हमारी टेबल क्रिएट हो जाएगी। प्राइमरी की रिस्ट्रिक्ट कॉलम टू हैव अ यूनिक वैल्यू ओनली, ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई दी। बाकी इसमें कंस्ट्रेंट की बात ओके यहाँ पर बात की गई है कंस्ट्रेंट की, इंट्रीगिटी कंस्ट्रेंट। इंट्रीगिटी का मतलब क्या होता है ये मैंने बताया था। डेटा इंट्रीगिटी की बात हम करते हैं, मतलब हम कंस्ट्रेंट क्यों लगाते हैं, कंडीशन क्यों लगाते हैं। जैसे स्टूडेंट टेबल में बना रहा हूँ जिसमें रोल नंबर नेम एड्रेस परसेंटेज 4 कॉलम है, तो मैं क्यों कंस्ट्रेंट लगाऊंगा, ताकि मेरा डेटा जो है वो पूरी तरीके से सही रहे। जो डेटा टाइप आप लिखते हैं वो भी एक तरीके का कंस्ट्रेंट ही है। तो जैसे रोल नंबर के लिए इंटीजर डेटा टाइप आपने दिया है तो उसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू आ सकती है। अब उसमें भी आप चाहें कि ये सिर्फ ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, ठीक है, तो वो भी एक कंडीशन हो गई। या जो आप नेम को लिखते हैं वो आप नेम कहें कि भाई ये नॉट नल रहे, इसकी वैल्यू ऐसा नहीं कि कोई इसको खाली छोड़ दे, तो वो भी एक कंस्ट्रेंट हुआ। परसेंटेज मेरी 100 से ऊपर ना हो, 1 से लेकर 100 के बीच में हो, ये कंस्ट्रेंट हो गया। सैलरी नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। तो ये सब क्यों लगा रहे हैं हम, ताकि डेटा पूरी तरीके से हमारा करेक्ट रहे। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंट्रीगिटी। डेटा इंट्रीगेट होना मीन्स द डेटा शुड बी करेक्ट इन ऑल आस्पेक्ट, इन ऑल मैनर्स, ओके।
So there are various constraints that we can apply. There is a constraint called unique constraint. So by writing simply unique, UNIQUE, that particular column will be the unique. मीन्स उसके लिए कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो पाएगी, लेकिन यूनिक लिखने से वो नल हो सकता है, ठीक है. इट अलाउज नल वैल्यूज, ठीक है. जबकि प्राइमरी की भी वही काम करेगी जो यूनिक कर रहा है, लेकिन ये क्या करेगा, इट डज नॉट एक्सेप्ट द नल वैल्यूज. So this is the difference between primary key and unique constraint. So unique is also unique, primary key is also unique, but the difference is that unique allow the null while the primary key is not allowing the null. There is a constraint called default. So default, then you can mention the value. So अगर user उस particular column की value provide करेगा तो उसकी value जाएगी, otherwise जो default value आपने दी है वो value उसमें चली जाएगी. यू कैन यूज़ द चेक कंस्टेंट अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू को आपको लिमिट करना है, ठीक है, टू सेट अ लिमिट, ठीक है. जैसे आप चाहते हैं कि जो परसेंटेज है वो 1 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, 100 से कम होनी चाहिए, या रोल नंबर हमारा पॉजिटिव में होना चाहिए, मोबाइल नंबर जो है वो हमारा 10 डिजिट में होना चाहिए, समथिंग लाइक दिस. देयर इज अ कंस्टेंट कॉल्ड फॉरेन की कंस्टेंट. सो फॉरेन की कंस्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द फॉरेन की, देन वी टॉक अबाउट द मल्टीपल टेबल्स. What is foreign key? What is FOREIGN? Foreign key. So एक चीज आप इसमें ध्यान रखें, जब भी हम foreign key की बात कर रहे हैं, that simply means we are talking about the multiple tables. कभी भी एक टेबल की बात नहीं करेंगे, ठीक है. फॉरेन की बात होगी तो 2 ही टेबल होगी या 2 से ज़्यादा टेबल होगी. तो अगर मेरे पास कोई एक टेबल है, सपोज मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट, और इस स्टूडेंट टेबल में क्या है मेरे पास, देखिए कुछ कॉलम्स मुझे दिए हुए हैं. सपोज यहाँ पर कॉलम है रोल नंबर, यहाँ पर कॉलम है नेम, यहाँ पर कॉलम है एड्रेस, एक कॉलम है मेरे पास परसेंटेज, और यहाँ पर जो ये रोल नंबर कॉलम है ये क्या दिया हुआ है, मेरा प्राइमरी की मैंने इसमें डिफाइन किया हुआ है, ठीक है. अब सपोज मेरे पास एक और टेबल है, उस टेबल का नाम क्या है मेरे पास, बुक, ठीक है. तो बुक टेबल है, और बुक टेबल के अंदर मेरे पास जो कॉलम है, सपोज इसके अंदर एक कॉलम है बी नंबर, एक कॉलम है बी नेम, बुक का नंबर क्या है, बुक का नाम क्या है, और यहाँ पर एक कॉलम है आर नंबर, ठीक है, और सपोज एक कॉलम है प्राइस. तो देखिए कुछ भी वैल्यूज इनके अंदर है. तो चूंकि टाइम मेरे पास ज़्यादा नहीं है, इस वजह से मैं थोड़ा इसको बताऊंगा. सो यहाँ पर इस बुक टेबल के अंदर हो सकता है ये जो बी है ये भी क्या है मेरे पास प्राइमरी की है. तो अगर कोई ऐसी टेबल है, इस टेबल को मैं क्या कहूँगा, समथिंग, दिस इज समथिंग लाइक चाइल्ड टेबल. चाइल्ड टेबल में किसको कहूँगा, क्योंकि देखिए इस टेबल के अंदर एक ऐसा कॉलम है रोल नंबर, और इस रोल नंबर की जो वैल्यूज़ हैं, सपोज यहाँ पर रोल नंबर है 101, 102, 103, और इसके अंदर भी वैल्यूज़ आ रही है 101, 101, 102. तो इस पर्टिकुलर कॉलम बुक टेबल के अंदर जो रोल नंबर वाला कॉलम है, इसकी जो वैल्यूज़ हैं ये स्टूडेंट टेबल के रोल नंबर वाले कॉलम से ड्राइव्ड होंगी. मतलब इस पर्टिकुलर कॉलम में सिर्फ वही वैल्यूज़ आएंगी जो कि इस पर्टिकुलर कॉलम में है. तो अगर किसी टेबल में मतलब बुक टेबल में अगर किसी टेबल के अंदर कोई ऐसा कॉलम है जिस कॉलम की वैल्यू किसी दूसरी टेबल के प्राइमरी की कॉलम से ड्राइव्ड होती हैं, तो उस पर्टिकुलर कॉलम को उस टेबल के अंदर क्या कहा जाता है, फॉरेन की. फॉरेन की इसका नाम जरूर है, ये की, लेकिन ये की नहीं होती है, मतलब ये कोई की एट्रीब्यूट नहीं है. इसकी वैल्यू रिपीट हो सकती है, देखिए जैसे 101, 101 2 बार आ रहा है, तो फॉरेन की इसका नाम जरूर है, बट इट मे बी रिपीटेड. सो फॉरेन की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ नॉन की एट्रीब्यूट इन द टेबल. It is a known key attribute. So foreign key is a known key attribute of a table whose value is derived from the primary key of another table. तो जब आप बुक टेबल को बनाएंगे, सपोज मैं यहाँ पर बुक टेबल को बना रहा हूँ, क्रिएट टेबल बुक, तो बुक टेबल में बाकी कॉलम तो आप जैसे बनाते हैं वैसे ही बनेंगे, बाकी कॉलम तो आप जैसे बनाएंगे वैसे ही बनेंगे. लेकिन जब आप आर नंबर कॉलम इसका बनाएंगे, तो आर नंबर का डेटा टाइप सपोज मैंने रखा है इंट, तो इसके लिए सिंटेक्स क्या है, यहाँ पर आप लिखेंगे रेफरेंसेस. क्या लिखेंगे, रेफरेंसेस, और फिर किस टेबल से इसकी वैल्यू ड्राइव्ड हो रही है, उस टेबल का नाम, और फिर ब्रैकेट के अंदर उसके कौन से कॉलम से ड्राइव्ड हो रही है, तो उसके रोल नंबर से ड्राइव्ड हो रही है, रोल नंबर, फिर कोमा, ये चीज़ लिखनी है, ठीक है. तो जिस कॉलम को फॉरेन की बनाना है उसका नाम, फिर रेफरेंसेस, और फिर उस पर्टिकुलर टेबल और उसके कॉलम का नाम. ये जो कॉलम है
जो उसकी रेफरेंस टेबल में है, जिसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, पेरेंट टेबल भी कहेंगे। तो ये टेबल क्या हो गई, पेरेंट टेबल हो गई, क्योंकि यहाँ से वैल्यू आ रही है, ड्राइव्ड हो रही है, और ये वो टेबल है जिसमें वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। तो ये हो गई चाइल्ड टेबल। तो जो पेरेंट टेबल है उसके अंदर जो कॉलम है उसका प्राइमरी की होना जरूरी है, और चूंकि प्राइमरी की एक ही होता है तो कभी कभी अगर आप इसको खाली भी छोड़ दें तो भी वो अपने आप जो पेरेंट टेबल आप देते हैं उसके प्राइमरी की कॉलम को ले सकता है। सर इसका यूज क्या आता है, मतलब बाकी तो मतलब टेबल को ठीक करने, ये क्या ओके, काम गुड करता गुड है गुड ये गुड गुड। टेबल? अच्छा, इसका यूज़ क्या है, देखिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। देखिए अब जैसे कोई स्टूडेंट है, जैसे किसी स्टूडेंट का एडमिशन होता है, तो एडमिशन होता है तो सपोज आप क्या करते हैं, स्टूडेंट टेबल के अंदर उस स्टूडेंट की एंट्री करते हैं कि उसका नाम ये है और ये। और वही स्टूडेंट जब कोई बुक इशू करने जाता है लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरी वाले सर क्या करते हैं, बुक टेबल के अंदर उसकी एंट्री करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पर कोई बुक है, आईपी की कोई बुक है, और वो आईपी की बुक किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर इशू की हुई, ठीक है। तो अब सपोज कोई 101 रोल नंबर वाला स्टूडेंट है, वो टीसी लेने आया, तो जो टीसी उसको दे रहा है, वो टीसी का जो आपने फॉर्म बनाई है वो क्या करता है, स्टूडेंट टेबल से जो उसके रिकॉर्ड को डिलीट करता है। बट टीसी होने के बाद उस रिकॉर्ड को डिलीट करेगा। लेकिन जैसे ही अब चूंकि ये चीज़ इसकी फॉरेन की बनाई हुई है, तो जब आप इस रिकॉर्ड को डिलीट करने जाएंगे तो फिर आपको एक एरर आएगी, वो कहेगा कि ये रिकॉर्ड डिलीट नहीं हो सकता क्योंकि इसके रेफरेंस में और भी रिकॉर्ड हैं, इसके रेफरेंस में और रिकॉर्ड बुक टेबल के अंदर एग्जिस्ट करता है, मतलब उसने अभी तक बुक जमा नहीं करवाई। तो पहले वो बच्चा क्या करेगा, लाइब्रेरी में जाएगा, पहले अपनी बुक जमा कराएगा। जैसे ही वो बुक जमा कराएगा तो ये जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड है ये उसके रिमूव होंगे, ठीक है। ये रिकॉर्ड जब इसके रिमूव होंगे तो ये रिकॉर्ड डिलीट हुए तो फिर अब उसका पेरेंट रिकॉर्ड आपका रिमूव हो जाएगा। तो जब भी रिकॉर्ड के ऊपर आपस में डिपेंडेंसी रहेगी तो पूरी इंट्रीगिटी लाने के लिए, डेटा इंट्रीगेट रखने के लिए, करेक्ट रखने के लिए हम फॉरेन की के कंस्ट्रेंट को यूज़ करते हैं, जो कि डेटा इंट्रीगिटी में बहुत अहम रोल अदा करता है। ओके, सो एसक्यूएल का रिवीजन हम कर रहे थे, क्रिएट टेबल की हम बात करते हैं। सो आप देखेंगे शो टेबल्स में एक डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ, यूज स्कूल, और इसके अंदर शो टेबल्स किया तो अटेंडेंस EMP1, ये 3 टेबल इसमें ऑलरेडी है। मैं यहाँ पर नई टेबल बनाता हूँ, क्रिएट टेबल। अब मैं सपोज यहाँ पर एक नई टेबल बना रहा हूँ, एम्प्लॉय, ठीक है। तो सिंटेक्स यही है, क्रिएट टेबल और उस टेबल का नाम, फिर आपको ओपन ब्रैकेट देना है, ठीक है। या तो आप यहाँ पर भी ब्रैकेट दे सकते हैं या इसके नेक्स्ट लाइन में भी ब्रैकेट दे सकते हैं। जैसे नेक्स्ट लाइन में मैंने यहाँ पर ओपन ब्रैकेट दिया, स्मॉल ब्रैकेट दिया। 3 ब्रैकेट हमारे पास यूज़ होते हैं। ब्रैकेट का बच्चों यहाँ पर अलग अलग सिग्निफिकेंस है, ये हमको बिल्कुल क्लियर मालूम होना चाहिए कि कौन सा ब्रैकेट किस लिए यूज़ होता है। सो दिस इज स्मॉल ब्रैकेट, दिस इज कर्ली ब्रैकेट एंड दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट। सो ये ब्रैकेट यूज़ होगा हमारा क्रिएट टेबल में, ठीक है। ये ब्रैकेट यूज़ करना है, क्रिएट टेबल। ओके, दिस इज कॉल्ड स्मॉल ब्रैकेट। अब मुझे कॉलम के नाम रखने, जो भी मैं नाम रखना चाहूँ, सपोज EMP_ID। कभी भी कॉलम का नाम जो रखेंगे उसमें कोई स्पेस नहीं आएगी, ठीक है, और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी उसमें नहीं होना चाहिए। सपोज वी वांट द सेपरेशन, देन वी कैन यूज द अंडरस्कोर। सो क्रिएट टेबल EMP_ID। देन इसका जो डेटा टाइप रखना है, डेटा टाइप मैंने आपको बता दिया हम क्या क्या डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं SQL में मेनली। देखिए, अगर इंटीजर है तो आप इंटीजर यूज़ कीजिए, फ्लोट है तो आप सिंपल फ्लोट यूज़ कर लो, अगर केर या मतलब स्ट्रिंग है तो आप केर या वेर केर यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस मैंने बता दिया। डेट अगर है तो सिंपल डेट यूज़ करेंगे, टाइम अगर है तो टाइम यूज़ करेंगे, डेट टाइम दोनों है तो डेट टाइम यूज़ करेंगे, ठीक है। खाली ईयर है तो ईयर यूज़ करेंगे। सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट वी कैन यूज़ द कोरस्पॉन्डिंग डेटा टाइप। सपोज इंट, और इसको प्राइमरी की में रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो प्राइमरी की कंस्टेंट कैसे दिया जाता है, लिखेंगे प्राइमरी स्पेस की, दिस इज द सिंटैक्स, ठीक है। प्राइमरी स्पेस की, छोटे बड़े से कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। EMP_ID इंट प्राइमरी की। अगर किसी कॉलम को आप प्राइमरी की देते हैं तो वो कॉलम, उस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू हमारी यूनिक रहेगी, मतलब वो रिपीट नहीं हो पाएगी, और वो नल वैल्यू भी नहीं होगी। प्राइमरी की क्या होती है हमारी, नॉट नल होती है। व्हाट इज प्राइमरी की? प्राइमरी की इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स विद इन द रिलेशन। प्राइमरी की एक सिंगल कॉलम को लेके भी बनाई जा सकती है, या ग्रुप ऑफ कॉलम को लेके भी प्राइमरी की हम बना सकते हैं। यहाँ पर ये जो सिंटेक्स है, क्योंकि जो कंस्ट्रेंट हम अप्लाई कर रहे हैं, कंस्ट्रेंट 2 टाइप के हैं हमारे पास, टेबल कंस्ट्रेंट और कॉलम कंस्ट्रेंट। कॉलम कंस्ट्रेंट एंड टेबल कंस्ट्रेंट। कॉलम कंस्ट्रेंट जो कि हर एक पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर वो अप्लाई होगा,
टेबल कंस्ट्रेंट जो ग्रुप ऑफ कॉलम के ऊपर अप्लाई होगा। तो अगर आप जहाँ पर कॉलम बना रहे हैं उसी वक्त अगर आप कंस्ट्रेंट दे रहे हैं तो ये क्या हुआ, हमारा कॉलम कंस्ट्रेंट हुआ। अब अगर मैं ऐसी प्राइमरी की बनाना चाहूँ जो कि 2 कॉलम को लेके बनी हुई है तो फिर इस सिंटेक्स से मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं सिंपल इसको प्राइमरी की ले रहा हूँ। सपोज नेक्स्ट कॉलम में रखना चाहता हूँ ई नेम और इसका डेटा टाइप मैंने रखा है वेर केयर। जब भी केयर या वेर केयर देंगे तो आप साइज़ ज़रूर मेंशन करेंगे। वो साइज़ क्या होगी, उसकी मैक्सिमम साइज़ होगी कि इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर इसमें आप स्टोर कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर कुछ नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू नल हो सकती है, मतलब यूज़र जब रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा तो अगर इसकी वैल्यू नहीं भी देगा तो उसका काम हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि जब इस टेबल एम्प्लॉय टेबल में कोई रिकॉर्ड इंसर्ट किया जाए तो ई नेम के अंदर वैल्यू जरूर स्टोर हो, कंपलसरी हो। तो इसको क्या कंस्ट्रेंट देंगे हम, नॉट नल कंस्ट्रेंट देंगे। नॉट नल, नॉट नल कंस्ट्रेंट देने से क्या होगा, ये देखिए मैंने यहाँ पर कोमा गलत लगा दी, ई नेम वेर केयर 100 नॉट नल। नॉट नल देने से मतलब अब इसकी वैल्यू नल नहीं की जा सकती। अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो उसकी वैल्यू नल हो सकती है। सपोज एक कॉलम है इसके अंदर एड्रेस, एड्रेस को भी मैं ले रहा हूँ वेर केयर 200। अब इसकी मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखना चाहता हूँ, सो मैं लिखूंगा DEFAULT डिफ़ॉल्ट और फिर स्पेस देंगे, फिर जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखना चाहते हैं, सपोज जयपुर। डिफ़ॉल्ट वैल्यू देने का मतलब ये है कि अगर जब इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट किया जाएगा तो यूज़र इसकी वैल्यू प्रोवाइड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। तो यूज़र अगर इसकी वैल्यू प्रोवाइड कर देता है तो यूज़र जो वैल्यू देगा वही वैल्यू जाएगी। लेकिन अगर यूज़र वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप इसमें रखेंगे जयपुर, वो वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट होगी। तो देखिए 3 कंस्ट्रेंट मैंने इसमें यूज़ कर लिए, प्राइमरी की, नॉट नल और डिफ़ॉल्ट। इनकी मिक्सिंग भी हो सकती है। जैसे मान लो एक इसमें कॉलम है DEPT, ठीक है, DEPT नेम, ठीक है, ये क्या है मेरे पास वेर केयर है और ये है 100। इसमें मैं कोई कंस्ट्रेंट नहीं दे रहा, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट नल हो सकता है। एक DEPT नंबर इसके अंदर कंस्ट्रेंट है जो कि इंटीजर टाइप का है, और जो DEPT नंबर होना चाहिए वो मैं चाहता हूँ कि वो क्या होना चाहिए, वो 100 से ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। तो चेक DEPT नंबर ग्रेटर देन 100, ये मैं चेक कंस्ट्रेंट इसके अंदर दे रहा हूँ। ओके, एक कंस्ट्रेंट कोई भूल रहा हूँ मैं कहीं से, हो गया सारे। नॉट नल, प्राइमरी की, डिफ़ॉल्ट, चेक। फॉरेन की कंस्ट्रेंट था तो फॉरेन की कंस्ट्रेंट तो मल्टीपल टेबल के साथ होगा, तो एक और टेबल इसमें मुझे बनानी पड़ेगी। सपोज ये है और एक कॉलम में, हाँ यूनिक कंस्ट्रेंट भी भूल रहे हैं। तो देखो बच्चों, या तो यूनिक कंस्ट्रेंट यूज़ कर लेंगे या प्राइमरी की यूज़ कर लेंगे, एक ही यूज़ कर पाएंगे आप, ठीक है। या अगर प्राइमरी की के अलावा भी यूनिक कंस्ट्रेंट तो आप दे सकते हैं पर्टिकुलर कॉलम में, ठीक है। तो दोनों का लेकिन काम एक ही रहेगा, प्राइमरी की एक ही होगी, लेकिन यूनिक कंस्ट्रेंट आप अलग अलग के लिए अलग अलग दे सकते हैं अगर चाहें तो, कि उसकी वैल्यू यूनिक रहे तो। लेकिन ये है कि यूनिक कंस्ट्रेंट जो होगा वो नल हो सकता है। जैसे मैं सैलरी को चाहूँ कि सैलरी यूनिक रहे, लेकिन सैलरी तो यूनिक कैसे रहेगी, सैलरी तो 2 व्यक्तियों की सेम हो सकती है, ठीक है। इस सैलरी को मैं लेता हूँ यहाँ पर फ्लोट और इसको करता हूँ मैं नॉट नल। ये लगभग मेरी टेबल बन गई है। ब्रैकेट को बंद करूँगा, सेमीकोलन दूंगा, एंटर। चेक कंस्ट्रेंट का यूज़ किया है, चेक यूज़ किया है, ब्रैकेट लगाया है इसमें। ओके, लेट पुट द ब्रैकेट हियर। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, देन दिस प्राइमरी की, देन दिस ई नेम, देन दिस एड्रेस, देन दिस डिपार्टमेंट नेम, देन दिस चेक। सो चेक में इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट की वजह से शायद हो सकता है इसमें एरर आ रही हो, तो हमारी एरर दूर हो जाएगी। ओके, तो इतना सा काम हो गया बच्चों, ब्रैकेट में देना है। चेक कंस्ट्रेंट के बाद आपको क्या लगाना है, ब्रैकेट लगाना है। सो टेबल मेरी बन गई है। देन विच कमांड इज यूज टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, टेबल की स्ट्रक्चर देखना है। देन द आंसर इज डिस्क कमांड, DESC डिस्क, एंड देन द टेबल नेम, सपोज डिस्क एम्प्लॉय। So you can see this is the structure of table, EMP ID, E-name address, DEPT name, DEPT number and then the salary। ये देखिए नल हो सकता है कि नहीं, तो नॉट नल कंस्ट्रेंट मैंने लगाया था। किस किस के लिए नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाया था, देखिए ई नेम के लिए लगाया था, तो ई नेम नो है, और जो प्राइमरी की है उसके लिए भी नॉट नल मैंने, वो हो ही जाती है ऑटोमेटिक, तो इन 2 के लिए नो है और सैलरी के लिए नो है, बाकी इन 3 में यस है, ठीक है। तो
आप इनकी मिक्सिंग भी कर सकते हैं, मतलब अगर चाहे तो जैसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट भी लगाना है और नॉट नल भी लगाना है तो ऐसा कर सकते हैं, चेक भी लगाना है नॉट नल भी लगाना है तो इनकी मिक्सिंग की जा सकती है। अब सपोज मैं यहाँ पर एक नई टेबल बनाता हूँ, क्रिएट टेबल DPT, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल बनाता हूँ। इस डिपार्टमेंट टेबल के अंदर DPT नंबर नाम का कॉलम है जो कि इंटीजर है और वो प्राइमरी की है, ठीक है, और इसके अंदर एक DPT नेम नाम का मैं कॉलम रख लेता हूँ, केयर वेर केयर 100 है जो कि नॉट नल है। अब देखिए इस टेबल के अंदर मैं एक कॉलम रखता हूँ EID करके, और EID इसका इंटीजर है और मैं चाहता हूँ कि इसका जो EID हो, इस कॉलम में जो वैल्यू ड्राइव्ड हो वो एम्प्लॉय टेबल के EMP-ID कॉलम से होनी चाहिए, ठीक है, मतलब इसको मैं फॉरेन की रखना चाहता हूँ EID इंट, और इस कॉलम की वैल्यू एम्प्लॉय टेबल के EMP-ID कॉलम से हो, मतलब एम्प्लॉय टेबल के प्राइमरी की कॉलम से हो। सो व्हाट शुड आई डू, EID इंट, देन आई हैव टू राइट रेफरेंसेस, देन द टेबल नेम जिसके रेफरेंस में ये जाएगा एम्प्लॉय, और उसका वो कॉलम EMP-ID। ये देखिए ये फॉरेन की बनाई है मैंने डिपार्टमेंट टेबल में, और सपोज इसमें एक कॉलम है लॉक, मतलब लोकेशन, वेर केयर 400 सपोज ये है, और ये टेबल मेरी बन गई क्योरी ओके। सो डिपार्टमेंट टेबल भी मेरी यहाँ पर बन गई है। इसकी स्ट्रक्चर में यहाँ पर देखता हूँ, डेस्क डिपार्टमेंट, so this, so I have created two table, desk employee, so these are the two table, this employee and this डिपार्टमेंट में आप देखें तो EID जो है ये फॉरेन की है, तो डेस्क में इसका कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा है हालांकि। अब देखिए नाउ आई वांट टू इंसर्ट द रिकॉर्ड इन द टेबल, सो कौन सी कमांड यूज करेंगे हम, इंसर्ट कमांड यूज करेंगे। The syntax is very simple. We have to write insert into, then the table name, suppose employee, then values, insert into table name, फिर values, फिर उसी सीक्वेंस में आप रिकॉर्ड देंगे जिस सीक्वेंस में कॉलम्स हमारे बने हुए हैं। सपोज 100 EMP-ID हो गया, ई नेम हो गया सपोज अमित, फिर आप कोमा देंगे। जितने भी आपकी स्ट्रिंग डेटा टाइप में लिए हैं वो डबल कोट्स में हमको देना है। सपोज एड्रेस में मैं यहाँ पर देता हूँ कोटा, या पूरा एड्रेस भी लिखना चाहे, डिपार्टमेंट सपोज इसकी है रिसर्च, कोमा, एंड देन DPT नंबर, सो DPT नंबर इज सपोज 10 एंड सैलरी इज सपोज 50,000, देन एंटर। सो देखिए एरर इसमें आई है, क्या एरर आई है, चेक कंस्ट्रेंट एम्प्लॉय CHK1 इज वॉयलेटेड। क्या एरर है, क्यों आई है ऐसा एरर, ये रिकॉर्ड इंसर्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए जो मैंने एम्प्लॉय टेबल बनाई थी उसमें जो कॉलम था, कौन सा कॉलम था एम्प्लॉय टेबल के अंदर, ये जो कॉलम था DPT नंबर, इसमें देखिए मैंने चेक कंस्ट्रेंट लगाया था, और इसका जो चेक कंस्ट्रेंट था वो क्या था कि DPT नंबर इन चेक इज ग्रेटर देन 100, सॉरी ये देखिए चेक DPT नंबर ग्रेटर देन 100, जो DPT नंबर है वो 100 से ग्रेटर देन ही होगा, और अब मैं यहाँ पर DPT नंबर मैंने क्या दिया है 10 दिया है, जबकि मैंने चेक कंस्ट्रेंट में क्या लगाया हुआ है कि 100 से ग्रेटर देन ही होना चाहिए, इस वजह से ये एरर आ रही है। तो अगर मैं इसको कितना करता हूँ यहाँ पर 101 करता हूँ तो देखिए क्वेरी ओके हो गई क्योंकि वो 100 से ऊपर है। सो इस तरीके से आप चेक कंस्ट्रेंट को इंटरेस्टिंगली यूज़ कर सकते हैं। एक और रिकॉर्ड में इसमें इंसर्ट करता हूँ, सपोज मैं वापस इसी रिकॉर्ड को इंसर्ट करना चाहूँ, फिर से एरर आएगी क्योंकि 100 नाम का जो रिकॉर्ड है उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है डुप्लीकेट एंट्री। सो प्राइमरी की में यूनिक वैल्यू आपको प्रोवाइड करना है। सपोज दिस, और इन दिस केस आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी एड्रेस, ठीक है, एड्रेस को मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। सो मैं इसको खाली छोड़ के देखता हूँ एक बार, खाली मैं इसमें नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं यहाँ पर नल लिखता हूँ, क्वेरी ओके हो गई। ओके इसके रिकॉर्ड देखता हूँ, अब नल दिए तो नल इसमें गया होगा या जो मेरा डिफॉल्ट था जयपुर वो गया होगा। सिलेक्ट एस्ट्रिक, ये गलती से मैंने एंटर दबा दिया, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, सारे टेबल के रिकॉर्ड देखने के लिए।
ओके, सो देयर इज अ नल, क्योंकि मैंने नल वैल्यू डाल दी है, जबकि मैं चाहता हूं जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हो वो वैल्यू इसके अंदर जाए। तो क्या करूं, अगर आप डायरेक्ट ऐसा यूज करेंगे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज वैल्यूज, तो देखिए आपको सारे कॉलम की वैल्यू ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आप इसमें स्किप नहीं कर सकते किसी को भी, कुछ न कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पर एड्रेस की वैल्यू प्रोवाइड नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ इसमें जयपुर जाए, और मैंने जब इसको एम्प्टी छोड़ा तो एरर आई, जब नल दिया तो देखो नल ही वहाँ पर चला गया। तो अगर मैं चाहता हूँ एड्रेस को मैं इसमें नहीं भरूँ, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करूँ भाई इसमें, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज, और यहीं पर आपको आपके कॉलम नेम की लिस्ट देना पड़ेगा। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज, अब जो जो कॉलम आप देना चाहते हैं, सपोज ईएमपी आईडी देना है, ई नेम देना है, अब एड्रेस नहीं देना है, डीपीटी नेम देना है, डीपीटी नंबर देना है, और सैलरी देना है। यहां पर आपने ब्रैकेट में दे दिया इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज, ईएमपी आईडी, ई नेम, डीपीटी नेम, डीपीटी नंबर एंड सैलरी। अब एड्रेस नहीं दिया, फिर आप क्या देंगे, वैल्यूज। तो अब आपको जो पहले जो आपने लिस्ट दी है बस उन्हीं की वैल्यूज आपको देनी है। सपोज 102, देन नेम इज सपोज दिनेश, एनी नेम, देन डीपीटी सपोज सेल्स, देन द नंबर इज 103, देन सैलरी इज सपोज 60,000। अब देखिए, अब मैंने कितनी वैल्यू इसमें दी है, मैंने इसमें सिर्फ 5 वैल्यू दी है, जबकि मेरे जो कॉलम थे वो कितने थे, यहाँ पर 6 कॉलम थे, लेकिन मेरे को जो देने थे वो कॉलम ही मैंने यहाँ पर दिए हैं। देखिए अब क्योरी ओके हो गई। तो अब चूंकि आपने एड्रेस की वैल्यू नहीं दी है, जब आप इसको देखेंगे तो देखेंगे एड्रेस में क्या गया है, यहाँ पर जयपुर गया है। तो देखिए इंसर्ट इनटू कमांड में अगर इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज, और यहाँ पर अगर कॉलम लिस्ट आप नहीं देते, डायरेक्ट वैल्यूज लिखेंगे, देन वी हैव टू प्रोवाइड द values for each column, and suppose we want to skip, then we have to use this insert command like this syntax. Any doubt in this? Is it clear or not? Okay. अब देखिए बच्चों, मैं क्या थी, मेरे पास एक टेबल और थी, कौन सी टेबल थी, डिस्क डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसका जो EID कॉलम था वो मैंने क्या दिया था, फॉरेन की दिया था, मतलब उसकी वैल्यू फॉरेन की, मतलब एम्प्लॉय टेबल के EMP-ID कॉलम से ड्राइव्ड होनी चाहिए। मैं इसमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट वैल्यूज, सपोज DPT नंबर, ये मुझे इसमें स्ट्रिंग में लेना है, सपोज 201, एनी नंबर, DPT नेम सपोज सेल्स, देन EMP-ID, देखिए अब मैं EMP-ID डालता हूँ इसमें 501, और इसकी लोकेशन है सपोज मुंबई। तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा क्या सक्सेसफुली, या कुछ एरर आएगी इसमें? व्हाट यू आर थिंकिंग, बताओ बच्चों। हाँ देखिए, इसमें प्रॉब्लम यही है कि आप EID को आप दे तो सकते हैं, लेकिन आप वही दे सकते हैं जो कि इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। अगर आप यहाँ पर 501 देंगे तो 501 वैल्यू वो पहले इसमें सर्च करेगा, इसी से ही आनी चाहिए वो वैल्यू, मतलब इसमें मिलनी चाहिए उसको भी वैल्यू, नहीं मिलेगी तो क्या देखा, देखिए इसको एंटर करते हैं, एंटर, सो इट इज इंसर्टिंग द वैल्यू 501। तो इतने तो इंसर्ट कर लिया, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डिपार्टमेंट, ये तो काम हो गया, जबकि 501 वैल्यू तो इसमें जानी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये तो फॉरेन की बनाया था मैंने डिपार्टमेंट में। तो ये तो जो हमारी डेटा इंटीग्रिटी है वो फॉलो नहीं हुई, यहाँ पर नहीं आई बात समझ में भाई। EID को मैंने जब फॉरेन की बनाया है तो एम्प्लॉय टेबल के EMP-ID कॉलम से ही वैल्यू इसमें आनी चाहिए थी, 501 इसमें कैसे आ गया? अगर इसमें ऐसा कोई रिकॉर्ड है, अगर 102 करता हूँ मैं और इसको मैं 202 करता हूँ, ये रिकॉर्ड तो ठीक है, 2 रिकॉर्ड हो गए, 102 इसमें मैच कर रहा है, दैट इज ओके, लेकिन 501 इसमें क्यों आ गया? बस मैडम होने वाली है। अच्छा, ये रिकॉर्ड इसमें कैसे चला गया 501, जबकि मैंने इसको फॉरेन की बनाया है? मैं कमेंट करता हूं एक बार,
ठीक है, डुप्लीकेट एंट्री के लिए ये इसको दे रहा है एरर, वो तो चलो डुप्लीकेट एंट्री तो ठीक है, 503 501 इसको तो ले रहा है ये आराम से। फॉरेन की कंस्ट्रेंट कहाँ लगा, इसका मतलब या तो फॉरेन की कंस्ट्रेंट इसमें ढंग से लगा ही नहीं। एम्प्लॉय टेबल के ईएमपी आईडी से मैंने इसमें कंस्ट्रेंट लगाया है। बताइए आप कहाँ पर प्रॉब्लम है, इसको क्यों इंसर्ट कर रहा है जबकि ये तो करना ही नहीं चाहिए इसमें। 501 वैल्यू ले क्यों रहा है, फिर क्या मतलब निकला फॉरेन की लगाने को। 501 ले रहा है क्योंकि सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, इसको खोजना और आप मुझे बताना क्या प्रॉब्लम है, ठीक है बच्चों।